Hello, children. How are you? I am Khalid Mahmood. Yesterday, we have read about the physiographic division of India, and we have covered the chapter. We have covered Northern Mountain System, Himalayan Mountain System, that is Himalayan Mountain System, and Punjab Haryana Plain. And this is Today, we are going to study the third important physiographic division of India, that is Peninsular Plateau. First of all, we understand that what is peninsula and what is plateau. We have to understand about these terms in a very facile way. So, first of all, we understand that what is peninsula. 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 Peninsula is actually an area which is covered by the water from three sides. This part of the India is actually considered a peninsula. This part, peninsula, because it is covered by the water from three sides. Here is the Arabian Sea, and here is the Bay of Bengal, and southern area here is the Indian Ocean. So this part is covered by the water from three sides: Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean. And we will understand the difference between peninsula and the island. Island क्या होता है? Actually, island is an area which is covered by the water from all sides. अगर इसके साइड में पूरी तरह से क्या है? पानी है, तो इसको हम कह सकते हैं आइलैंड. ओके. पेनिनसुला वो है जिसको थ्री साइड से पानी ने कवर किया है. जैसे ये इंडिया का ये जो है साउथर्न पार्ट जो है ये पेनिनसुला में आता है, क्योंकि इसको एक साइड से अरबियन सी ने सराउंड किया हुआ है, एक साइड से बे ऑफ बंगाल ने, और साउथर्न वाले साइड से इंडियन ओशन. तो वी कैन से दैट एन एरिया विच इज़ कवर्ड बाय द वाटर फ्रॉम थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला. एंड स्टेट, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेट, बिकॉज इंडियन here is Sri Lanka, है ना. Sri Lanka is joined to India through a Pak state, that is Gulf of Mannar and Pak state. Pak state is actually an area which is covered by the water from two sides. यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? स्टेट कह सकते हैं. तो हमने पढ़ लिया कि पेनिनसुला क्या है. Now peninsular plateau is actually the combination of two words. Peninsula means the area which is covered by the water from three sides, that is called peninsula, and plateau is actually refers to a elevated land. Elevated land जो है एक ऊपर उठी हुई ज़मीन को हम कह सकते हैं plateau. But land which is in tabular form, क्या हो? जो बिल्कुल एक tabular form की तरह हो, यानी जैसे ये एक टेबल लैंड की तरह होती है. जैसे हमारा टेबल ये है ना, यहाँ से ये टेबल लैंड है. बट इसमें डिफरेंस ये है, ये ऊपर टेबल लैंड जो है ये बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है, बिल्कुल इसमें थोड़ी इस ज़मीन से ऊपर उठी होती है, बट टेबुलर फॉर्म में होती है, बिल्कुल फ्लैट लैंड होती है. एलिवेशन में होती है, इससे ऊपर होती है, बट ऊपर से प्लेन होती है. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पेनिनसुला प्लेटो कह सकते हैं. तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि पेनिनसुला और प्लेटो क्या है. एक्चुअली ये वो उस जगह को रेफ़र करता है. ये ज़मीन जो है ये नॉर्थर्न प्लेन और इस जो है इस वाले एरिया से थोड़ी एलिवेटेड है, थोड़ी ऊपर उठी है, बट प्लेन है, प्लेटो फॉर्म में है, बिल्कुल प्लेन शेप में है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट कि ये यहाँ से what is the main source involves that how this area uplifted from other area. कैसे ये एरिया जो है दूसरे एरिया से थोड़ी ये वाली लैंड जो है कैसे एलिवेटेड है. तो इसके लॉजिकल हम इसको स्टडी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है. देखो, आज से in 1914 there was a famous geologist and astronomer named Alfred Wegener. अल्फ्रेड वैगनर एक बड़ा एस्ट्रोनमर और जियोलॉजिस्ट था.
He suggested that all the earth land had once been joined into single supercontinent. उसने कहा था कि एक बार ऐसा वक्त था कि ये पूरी दुनिया के जितने कंटिनेंट्स हैं, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कंटिनेंट्स जो हैं, उसने सजेस्ट किया था कि ये एक वक्त ऐसा था that this large landmass area was actually only one landmass into a supercontinent. ये एक सुपर कंटिनेंट था दैट इज सराउंडेड बाय द ओशन. इसको एक ओशन ने सराउंड किया था, उसका नाम इसने रखा था पेंथालासा. इसने कहा था कि अल्फ्रेड वैगनर इसने 1914 में इसने सजेस्ट किया था कि एक वक्त ऐसा था कि हमारी ये जितने भी आज कंटिनेंट्स बने हुए हैं, ये इसने 1914 में इसकी स्पेकुलेशन जो है इसने प्रोपोन्ड की थी. इसने कहा था कि 1914 में ये कहा था कि एक बार एक टाइम ऐसा था कि पूरी दुनिया एक कंटिनेंट थी और ये जितने भी जो क्या है ओशंस वगैरह हैं, ये उस टाइम एक ही सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट थे. तो इसने इस पूरे लैंड मास को इसने कहा था, उसका नाम दिया था इसने पेंजिया. सो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे टर्म को, पेन मीन ऑल एंड जिया मीन्स अर्थ. जिया मीन्स अर्थ. इसने कहा था कि ये सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम क्या था, पेंजिया, यानी ऑल अर्थ. ये तमाम बहुत बड़ा एक कंटिनेंट था. तो इसने कहा था कि दैट कंटिनेंट इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय द ओशन. इस कंटिनेंट को किसने सराउंड किया था? ये इसने कहा था कि ये एक क्या था, पेंजिया था. लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या था, एक सुपर ओशन जो था उसका नाम क्या था, पेंथालासा था. इसका नाम पेंथालासा था. इसने कहा कि ये पेंथालासा जो पेन मीन ऑल एंड लासा मीन ओशन, यानी ऑल ओशन. ये पेन मीन ऑल एंड जिया मीन अर्थ. इसने कहा था ये पूरी जो थी दुनिया ये एक ही कंटिनेंट के फॉर्म में थी जिसको इसने नाम दिया था पेंजिया. और इसके इर्द गिर्द जो था, दिस पेंजिया वाज एक्चुअली सराउंडेड बाय द ह्यूज पेंथालासा. एक बहुत बड़े ओशन ने इसको सराउंड किया था. तो इसने कहा ऑल ऑफ द सडन दिस पेंजिया गॉट ब्रोकन इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. जो है ये क्या हो गया, इसकी डिफरेंट मतलब जब ब्रोक हो गया तो इसकी डिफरेंट पीसेस बन गई. तो ज्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड, ये कब हुआ था, ये कार्बोनिफेरस पीरियड में ये हुआ था. तब से इसने कहा है सिंस देन द पीसेस हैड मूव्ड टू देयर प्रेजेंट पोजीशन एंड ऑल आर स्टिल मूविंग. इसने कहा था भाई कि तब से ये जो है ये पीसेस जो है इसके कंटिनेंट्स जो हैं ये तब से क्या है, मूवमेंट में है, लगातार ये है इसकी चल रहा है. तो इसके सपोर्ट में वेजनर एक्चुअली साइटेड वेरी एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ सुपर कंटिनेंट जो है पेंजिया. इसके बारे में इसने काफ़ी एविडेंस जो है प्रोपोन्ड किए हुए हैं. तो इसने कहा था कि नॉर्थन वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट जो है, इसने इसको नाम दिया था लरूशिया. क्या नाम दिया था, लरूशिया. एंड साउथन पार्ट जो है इसका नाम दिया था इसने गोंदवाना लैंड. इसको गोंदवाना लैंड का इसने नाम दिया था. बिफोर फाइनली स्प्लिटिंग इनटू कंटिनेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डे. इसने कहा था कि तब से ये जो है ये गोंदवाना लैंड जो है किसकी तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट इसकी लगातार चल रही है. तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें डिफरेंट्स जो है सबडक्शंस वगैरह जो है आकर होती हैं, प्लेट्स टेक्टोनिक्स वगैरह ये होती रहती हैं. कन्वर्जन, डिस्ट्रक्शंस, सबडक्शंस जो है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, कंस्ट्रक्टिव प्लेट जो है, ये सब इसी की वजह से बनते हैं. कुछ एरिया जो है ज़मीन का वो नीचे दब जाता है, कुछ एलिवेटेड हो जाता है. इसने तो यही जो है हम इसको ये जो है ये एरिया जो है पेनिनसुलर प्लाटो ये थोड़ा क्या हो गया है, थोड़ा एलिवेटेड हो गया है. किसकी वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से
ये एरिया जो है ये साउथर्न पार्ट जो है इंडिया का, ये थोड़ा एलिवेटेड लैंड फॉर्म में ये मौजूद है। तो इसलिए हमने इसकी बैकग्राउंड नॉलेज ये मतलब स्टडी की कि आखिर इसकी वजह क्या है कि यहाँ ये जो लैंड है ये थोड़ी नीचे की तरफ है, लो लाइंग लैंड है, और ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा एलिवेटेड लैंड है, अपलिफ्टेड लैंड है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि पेनिनसुलर प्लाटो क्या है। पेनिनसुलर प्लाटो जो है ये 150 मीटर जो है 150 मीटर से तकरीबन क्या है प्लेन्स राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर्स above the river plains up to an elevation of 6 to 900 मीटर। ये 6 to 900 मीटर जो है ये एक इरेगुलर और ट्रेंगुलर फॉर्म में है, इरेगुलर एंड ट्रेंगुलर फॉर्म में है, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। ट्रेंगुलर फॉर्म क्या है कि यहाँ से इसके एक ट्रेंगल शेप में बनी हुई है। दिस जो है ये वाला एक ट्रेंगुलर फॉर्म में है और इरेगुलर है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, किसी जगह इसमें अप्स एंड डाउन जो है लगातार इसमें है। तो अब यहाँ से ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया यू कैन सी है दैट दिस पार्ट ऑफ द एरिया जो है इज़ एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द अरावली। दिस इज़ एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द अरावली एंड extension of the Aravalli rising from the height of 150 meter above the river। ये river से 150 मीटर ऊपर है, up to an elevation 6 to 900 मीटर है। ये कितना है 6 to 900 मीटर, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर ये एलिवेटेड लैंड है इस वाले पार्ट से। तो एज द इरेगुलर ट्रेंग नोन एज द पेनिनसुलर प्लाटो जिसको हम कहते हैं। यहाँ से क्या है दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट, इसकी एक्सटेंशन जो है ये जो है नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट जो है नॉर्थ साइड में आता है और ये वेस्ट साइड में, यहाँ पे पड़ता है दिल्ली रिज से ये बिल्कुल स्टार्ट होता है एक्सटेंशन ऑफ अरावली। यहाँ से इसकी अरावली रेंज जो है सबसे ओल्ड माउंटेन सिस्टम जो है यहाँ से इसकी एक्सटेंशन होती है। और उसके बाद राजमहल हिल इन द ईस्ट, यहाँ पे राजमहल हिल है, राजमहल हिल जो है ये ईस्टर्न वाले पार्ट में पड़ती है। और गिर रेंज इन द वेस्ट, यहाँ पे गिर रेंज जो है ये गुजरात में आता है, गिर रेंज, ठीक, गिर रेंज जो है इसका वेस्ट में है। और कार्डोमम हिल्स इन द साउथ, यहाँ पे क्या है कार्डोमम हिल्स साउथ में। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये पेनिनसुलर पार्ट की जो बाउंड्री है ये कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली रिज जो है, यहाँ से अरावली रेंज यहाँ से स्टार्ट होता है ये। और उसके बाद जो है ईस्टर्न पार्ट में अगर हम जाएंगे तो राजमहल हिल जो है इसकी क्या है बाउंड्री है। उसके बाद वेस्ट में जो है गिर रेंज जो है गुजरात वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। और साउथ में जो है कार्डोमम हिल जो केरला तमिलनाडु वगैरह केरला में है। तो यहाँ तक इसकी दिल्ली से रेंज लेकर यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन है। तो अब हम इसको ये अंडरस्टैंड करेंगे कि दिस इज़ आल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इन द फॉरम ऑफ शिलांग एंड करबी एंगलोंग प्लाटो। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी है ये, इसमें कौन कौन से प्लाटो हैं। एक तो शिलांग है, शिलांग जो है मेघालय की कैपिटल है। करबी एंगलोंग प्लाटो है, करबी एंगलोंग प्लाटो जो है वो भी इसमें है। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पेनिनसुलर प्लाटो किसकी वजह से बना हुआ है, इसमें क्या 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 चीज़ें हैं, कौन कौन सी इसमें प्लेटो हैं जिनसे मिलकर ये हम इसको पेनिनसुलर प्लाटो का नाम देते हैं। पेनिनसुलर इंडिया इज़ मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लाटो सच एज, इसमें बहुत सारे आते हैं जैसे हज़ारीबाग प्लाटो, पेनिनसुलर में बहुत सारे प्लाटो आते हैं, हज़ारीबाग प्लाटो। उसके बाद जो है
इसमें क्या है, प्लामाउ प्लेटो। उसके बाद इसमें आता है रांची, झारखंड की जो कैपिटल है। उसके बाद मालवा प्लाटो जो है, मालवा प्लाटो। उसके बाद कोयम्बटूर जो है, कोयम्बटूर प्लाटो। एंड उसके बाद जो है ये कर्नाटका प्लाटो। सो बाय द कंपोजिशन ऑफ दीज ऑल प्लाटो जो है, सिंगल पेनिनसुलर प्लाटो इज एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस प्रेजेंट फॉर्म जो है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। सबसे पुराना और स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया है। इसकी जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लाटो इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। इसकी जनरल एलिवेशन कहाँ से है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसकी जनरल एलिवेशन है। तो विच इज़ ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ लो फ्लो ऑफ रिवर्स। इसमें बहुत सारे रिवर्स वगैरह जो हैं वो भी मौजूद हैं। सो पेनिनसुलर प्लाटो जो है, अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स क्या हैं? इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स इसमें हैं, किस किस से मतलब इसमें फ़ीचर्स क्या हैं? एक तो सबसे इसमें है टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, उसके बाद है रिफ्ट वैली एंड स्पर्स है। उसके बाद क्या है? स्पर्स है, बेर रॉकी स्ट्रक्चर्स। उसके बाद सीरीज ऑफ हमूडी हिल्स एंड वॉल लाइक क्वार्टजाइट वगैरह डाइक्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। So on the basis of these prominent relief feature, the peninsular plateau can be divided into 3 broad groups। जो है हम इसको क्या करेंगे? 3 broad groups में हम इसको डिवाइड करेंगे। किसकी बेस पे? prominent relief feature जो है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। एक तो इसमें डक्कन प्लेटो आता है, डक्कन प्लेटो। उसके बाद जो है द सेकंड इम्पॉर्टेंट प्लेटो इज़ द सेंट्रल हाईलैंड एंड थर्ड इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। तो नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन। हम इन सब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डक्कन प्लेटो क्या है। डक्कन प्लेटो इज़ एक्चुअली, मैं आपको इस पे बता देता हूँ, डक्कन प्लेटो जो है ये कहाँ से कंपोज हुआ है। डक्कन प्लेटो ये एक्चुअली रेफ़र करता है ये दक्कन वाले साइड को, इस वाले एरिया को जो है ये इसको कवर करता है। दिस इज़ बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट। यहाँ पे जो है ये जो है, ठीक है, तो यहाँ से दिस बॉर्डर बाय वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो है वेस्ट वाले साइड में है। यहाँ से क्या है? ईस्टर्न घाट है ना, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट जो है। एंड द सतपुरा मैकल रेंज इन महादेव हिल इन द नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या आता है? एक तो आता है सतपुरा, महादेव एंड मैकल रेंज, ठीक है, एंड मैकल रेंज इन द नॉर्थ साइड जो है। वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। जो वेस्टर्न घाट जो है ये डिफरेंट लोकल नेम्स जो है स्टेट के अकॉर्डिंग जो है इनका नाम रखा गया है। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड सह्याद्री इन महाराष्ट्र वाले एरिया में इसको सह्याद्री कहते हैं। एंड नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका में इसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका। एंड तमिलनाडु अनामलाई एंड कार्डोमम हिल्स इन केरला। तो केरला वाले पार्ट में जो है इसको तमिलनाडु हिल्स भी कहते हैं, तमिलनाडु हिल्स, अनामलाई हिल्स और कार्डोमम हिल्स भी कहते हैं इसको, कार्डोमम हिल्स भी कहते हैं। कहाँ पे? इसको केरला में कहते हैं। ये
3 नाम्स जो हैं इनको केरला वालों ने दिए हुए हैं। केरला में इसको वेस्टर्न घाट को तमिलनाडु हिल्स भी कहते हैं, अनामलाई हिल्स भी कहते हैं, कार्डमम हिल भी कहते हैं। महाराष्ट्र में जो है वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, और ये जो है नीलगिरी हिल जो है इसको कर्नाटका में कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर लिया है। अब हम इसको देखेंगे कि वेस्टर्न घाट जो है ये ईस्टर्न घाट से ज़्यादा एलिवेटेड फॉर्म में है, ज़्यादा ऊंची है और मोस्ट कंटिन्यूस है। मोस्ट कंटिन्यूस इन द सेंस कि यहाँ पे पासेस जो है बहुत कम है, और ईस्टर्न वाला पार्ट जो है ये काफ़ी क्या है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है। डिसकंटिन्यूस की वजह क्या है कि यहाँ से बहुत सारे जो रिवर जो हैं इनका फ्लो होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे यहाँ से इसको बीच बीच में गैप बने हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब रिवर जो है उन्होंने इसको एरोड किया हुआ है और काफ़ी पासेस जो है ज़्यादा बनाए हुए हैं। सो दिस एरिया इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज द मोस्ट कंटिन्यूस and eastern part is discontinuous because some parts of it is actually eroded by the rivers. So this is not most stable and continuous in form. So their average elevation is about 1500 meter with the height increasing from north to south. ये जो है नॉर्थ से इसकी हाइट ज़्यादा है और साउथ से इसकी हाइट कम है। ये नॉर्थ से 1500 मीटर है। कितना? 1500 मीटर है। द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट की जो हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न घाट, इसकी हाइएस्ट पीक जो है अनामुदी हिल्स है। अनामुदी हिल्स, हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज़ कॉल्ड अनामुदी, एंड द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज़ कॉल्ड महेंद्रगिरी। इसको हम क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। इसकी हाइएस्ट पीक जो है कौन सी? अनामुदी हिल्स कहते हैं, और ईस्टर्न घाट की जो है हाइएस्ट पीक जो है उसको क्या कहते हैं? हम महेंद्रगिरी कह सकते हैं। The highest peak of Peninsular Plateau is located on the Anamalai Hills of the Western Ghat, followed by Doda Betta. तो यहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट जो है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ये जो ईस्टर्न घाट जो है ये मिलती हैं, इसको नीलगिरी हिल भी हम कहते हैं और डोडा बेटा भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर जो हैं उनकी ओरिजिन कहाँ से है? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट से बहुत सारे रिवर जो है फ्लो करते हैं। ईस्टर्न घाट कंप्राइजिंग द डिसकंटिन्यूस एंड लो हिल्स आर हाईली एरोडेड बाय द रिवर सच एज। इसमें बहुत सारे ये डिसकंटिन्यूस क्या है? इसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे रिवर हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉल करती है महानदी, गोदावरी, उसके बाद आ गया कृष्णा और कावेरी। ये तमाम जो है ये यहाँ से जब इसमें घुसते हैं तो उसकी वजह से इसमें जो है काफ़ी कटाव हो जाता है ज़मीन का, एरोजन ऑफ द लैंड जो है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंज सच एज, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रेंज जो हैं, जैसे कि ईस्टर्न घाट में कौन कौन से रेंज जो है इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक तो जवादी हिल्स है, उसके बाद है पालकोंडा रेंज, जिसको पालकोंडा रेंज है, एंड नाला माला हिल्स जो है यहाँ पे है। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है बोथ मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। यहाँ से जब ये आती हैं इनका यहाँ नीलगिरी हिल्स में यहाँ इनका मीटिंग पॉइंट है। तो नाउ वी विल मूव ऑन सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है? दिस इज दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय द अरावली रेंज। अब इनको देखेंगे कि वेस्ट वाले साइड में जो है यहाँ इसको अरावली रेंज यहाँ पे पड़ता है। यहाँ इन दिस पार्ट ऑफ द एरिया इज एक्चुअली कॉल्ड अरावली रेंज। यहाँ पे इसको अरावली रेंज आता है। सतपुरा रेंज इज फॉर्मड बाय सीरीज ऑफ स्क्रैपेड प्लाटोज ऑन द साउथ। तो यहाँ पे इसको अरावली रेंज यहाँ पे आता है, यहाँ पे सतपुरा रेंज आता है, बीच में इनको एक रिवर फ्लो करता है जिसका नाम है नर्मदा रिवर।
तो नर्मदा रिवर जो है इनकी डिवीज़न करता है सतपुरा और इसकी अरावली और सतपुरा के बीच में जो है एक रिवर बहता है जिसका नाम नर्मदा है। तो दामोदर रिवर भी है, उसको जब ये जाके इसमें वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है, ये काफ़ी एक्सेसिव फ्लडिंग जो है इसकी वजह से होती है। इसको दमोदर कहते हैं, दमदार इन द सेंस एक काफ़ी, दमोदर क्यों कहते हैं, इसमें काफ़ी दम है, काफ़ी दमदार है। तो एलिवेशन जो है इसकी एलिवेशन जो है सेंट्रल हाईलैंड जो है ये, इसमें स्क्रैपर्ड प्लेटोज बहुत सारे आते हैं साउथ वाले पार्ट में, इसमें काफ़ी स्क्रैपर्ड प्लेटो हैं जिसकी जो है 600 to 900 मीटर जो है अबोव द मीन सी लेवल जो है, जो सी लेवल जो है उससे तकरीबन 600 से 900 मीटर तक जो है इसकी एलिवेशन है। दिस फॉर्म द नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री ऑफ द ढक्कन प्लाटो। अब जो है ढक्कन प्लाटो की ये नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री है। ढक्कन प्लाटो इस एरिया में पड़ता है, यहाँ से ये जो है अरावली रेंज से सतपुरा रेंज के बीच में जो है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जिसके बीच में नर्मदा रिवर जो है फ्लो करता है 600 to 900 मीटर जो है अबोव द मीन सी लेवल जो है इस पे वो है। दिस फॉर्म द नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री ऑफ द ढक्कन प्लाटो। ये जो है सेंट्रल हाईलैंड ये ढक्कन प्लाटो की नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री है। इट इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द रिलिक्ट माउंटेन। इसमें रिलिक्ट माउंटेन बहुत ज़्यादा हैं which are highly denuded and form discontinuous range। बहुत सारे discontinuous range हैं, इसमें मतलब लगातार ये जुड़े हुए नहीं, इसमें कुछ गैप्स वगैरह जो है एग्जिस्ट हैं और विजिबल है। द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लाटो कैन बी सीन एज फॉर एज जैसलमेर इन द वेस्ट। अगर हम देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लाटो की एक्सटेंशन कहाँ से हुई है भाई, तो जैसलमेर जो है वेस्ट में जो है वहाँ से स्टार्ट हुई है। वेयर इट हैज़ बीन कवर्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिज एंड क्रेसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स कॉल्ड बर्चन। इसमें क्रेसेंट शेप्स जो है रेज के रिज जैसे हैं जिसको हम बर्चन कहते हैं। तो ज़्यादा हम इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, अब इसकी कोई जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विंध्यन कुमार रेंज जो है। इसमें जनरल एलिवेशन जो है सेंट्रल हाईलैंड की जनरल एलिवेशन 700 to 1000 मीटर जो है अबोव द मीन सी लेवल एंड इट स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन जो है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, ये वाला पार्ट जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, इस वाले पार्ट में जो है इसकी स्लोप थोड़ी बहुत है। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विंध्यन इन द कैमूर रेंज। रिवर यमुना जो है दिल्ली में जो है यहाँ पे उसकी दिल्ली का एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो है रिवर यमुना, दिल्ली इज़ आल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो इसका जो है ओरिजिन जो है यमुना का ओरिजिन है विंध्यन और कैमूर रेंज। यहाँ पे विंध्यन और कैमूर रेंज जो है इसी में से यमुना जो है उसकी ओरिजिनेशन होती है। बानाज इज़ वन ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल। रिवर चंबल जो है एक उसकी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं स्मॉल रिवर विच हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लार्ज रिवर जो है, जो बड़े रिवर से एक छोटा रिवर निकलता है उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली इन द वेस्ट। वो कहाँ से, अरावली जो है वेस्ट वाले साइड से यहाँ से ओरिजिनेट होता है। एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज़ फॉर्म बाय द राजमहल हिल। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड के ईस्टर्न वाले पार्ट में क्या क्या कौन कौन से पार्ट पड़ते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एक सेंट्रल हाईलैंड जो है इज़ फॉर्म बाय द राजमहल हिल इसमें आता है, जो कि रिज़र्व है किसके लिए, मिनरल रिसोर्स में काफ़ी हैं और छोटा नागपुर प्लाटो में ये पड़ती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे नाउ वी विल मूव ऑन नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो वी हैव आल्सो स्टडी ढक्कन प्लाटो, सेंट्रल हाईलैंड प्लाटो एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो जो है अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो जो है दिस पार्ट ऑफ द इंडिया, एक्चुअली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो है, यानी इसमें भी काफ़ी हाई लैंड है और टेबुलर फॉर्म है, प्लेन एरिया है, मगर थोड़ी उठी हुई ज़मीन है।
हम इसको स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्लाटो जो हैं इसमें मौजूद हैं, और हम इसको डिटेल्ड स्टडी करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो जो है एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर प्लाटो, ये भी मेन पेनिनसुलर प्लाटो जो है ये हमारा इसी की वजह से इसकी एक्सटेंशन हुई। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, ये बिलीव करते हैं हम, ये बिलीव किया जाता है कि आज से पहले जब नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट जो है, मैंने आपको ये अभी पढ़ाया मैंने कि हमेशा जो है ये जितनी भी प्लेटें जो हैं ये किसकी तरफ, नॉर्थ वार्ड मूवमेंट इसकी लगातार चलती रहती है। जब ये नॉर्थ वार्ड की तरफ जो है प्लेट टेक्टोनिक जो है इसकी मूवमेंट हुई, तो इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ द हिमालयन ओरिजिन, जब हिमालयन ओरिजिन हुआ था तब से ये प्लेट जो है इसकी मूवमेंट कहाँ, नॉर्थ वार्ड की तरफ होती है। ए ह्यूज फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल एंड द मेघालय प्लाटो, ये जो है राजमहल हिल, मेघालय वगैरह, शिलोंग, मिजोरम, सिक्किम जो है, अरुणाचल प्रदेश, ये हिंदुस्तान का ईस्टर्न पार्ट जो है, ये इसमें क्या हुआ, जब हिमालय की ओरिजिन हुई तब से ये क्या हो रहा था, ये जो इंडियन प्लेट जो है वो लगातार किसकी तरफ मूवमेंट कर रही है, नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन उसकी हो रही है। तो जब ये उसकी तरफ मूवमेंट कर रही थी तो ह्यूज फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल एंड द मेघालय प्लाटो, इनके दरमियान एक बहुत बड़ा जो है एक गैप बन गया था। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द न्यूमेरस रिवर्स, उसके बाद बहुत सारे रिवर्स जो हैं उनकी वो डिपॉजिट करते रहे अपने साथ जो है सेडिमेंट्स वगैरह, तो उसकी वजह से ये डिप्रेशन जो है थोड़ा बहुत मतलब भरना स्टार्ट हो गया। द मेघालय एंड द कर्बी इंग्लैंड प्लाटो स्टैंड डिटैचड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक, उससे फिर ये अलहदा हो गया। द मेघालय प्लाटो इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3, हम इसको डिवाइड करते हैं इन 3 फॉर्म्स में, 3 प्लाटो में। एक तो गारो हिल्स है, खासी हिल्स है और जंतिया हिल्स जो है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो को हम क्या किस में डिवाइड करते हैं, 3 मेंस प्लाटो में। एक तो गारो हिल्स है, खासी हिल है और जंतिया हिल है, नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप्स इनहैबिटिंग दिस रीजन जो है, ये जो है जो ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे रहते थे उनकी वजह से इन पहाड़ियों का जो है नाम रखा हुआ है। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज़ आल्सो सीन इन द कर्बी इंगलांग हिल्स, कर्बी इंगलांग हिल्स से यहाँ इनकी एक्सटेंशन होती है। तो फिर जो है इसमें बहुत सारे छोटा नागपुर प्लाटो, मेघालय प्लाटो बहुत सारे आते हैं। दे आर वेरी रिच इन मिनरल सोर्सेस, में काफ़ी मिनरल सोर्स हैं जैसे कि कोयला है, आयरन है, ओर है, सिलीमेनाइट है, लाइमस्टोन है, यूरेनियम वगैरह इस पार्ट में काफ़ी जो है दे आर ऑल एक्चुअली एग्जिस्ट इन रिचेस्ट फॉर्म जो है। दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून जो है यहाँ से आते हैं तो इस एरिया में बहुत